Hello everyone, I hope I'm audible. Hello everyone, welcome to ProTrainee's Microsoft Excel webinar. I'm Farhan, your host for today's session. Let me give you a brief introduction about who we are. ProTrainee is an NRCEL IAM Bangalore pre-incubated tech startup. We are registered with Startup India, Startup Odisha, and OCA. Landing skill requisites which precisely fit market demand is tougher than landing a job itself. That's where we come into play. We prepare engineering students to be industry ready by training them for essential required in the field. We believe that skill building is an extensive process which requires detailed and practical knowledge with the help of our experienced experts. Our only aim is to build a skilled workforce for all industries and to create thought leaders of tomorrow. ProTrainee begin to you an evolving industry ready environment to tackle the ever shifting business scenario. As an educational platform creator, we offer many courses to make you industry ready. To be updated with our upcoming amazing courses, go and follow our Instagram, Facebook, and LinkedIn profile by the name ProTrain. Now, I will like to introduce our expert, Vishal sir, who have joined our forces to make everyone industry ready. Now, I request sir to start the session. Thank you, Farhan. Hello, Yeah, am I audible now? most welcome, Yeah, sir. You are audible. yeah, great. So I can start now. Okay, so I see around good number of participants here, around crossing half century. So first of all, good morning and hello to all the good people over here. And I understand the crowd is mix of both, professional and student. So before I kick off with the session, or rather today's content, would first like to thank ProTrainee for providing a platform to share my experience with you guys, and also would like to thank you and all the members who are right now who have taken out some quality time from their Sunday routine and spending on this webinar. So a round of applause for all of you who are here. So having said that, I know normally we should continue our sessions in English, but I am comfortable with both Hindi and English. So while I am going through the session, I'll be using both the languages. कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो आपको समझने में या कुछ भी तो आप प्लीज उसे चैट बॉक्स पे डालें एंड देन वी कैन गो थ्रू इट बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू सेट अप सम पैटर्न टू इट सो नॉर्मली अपन सेशन पे क्या करेंगे मैं आपको जब सेशन वॉक थ्रू कराऊंगा उस दौरान मैं बोलूंगा कोई जो भी क्वेश्चंस आए आप उसे चैट बॉक्स पे डालें एंड सेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक होने के बाद या मैं खुद ही क्या बोलते हैं Q&A सेशन ओपन करूंगा जहां पर आपके क्वेश्चंस जो कंटेंट रिलेटेड रहेंगे वो मैं आंसर कर दूंगा और अगर कोई चीज आपकी कोर्स सर्टिफिकेशन रिलेटेड रहेगा या प्रो ट्रेनी एज अ ऑर्ग रिलेटेड रहेगा वो आपको ऑपरेशंस टीम यहाँ पर आंसर कर देगी ठीक है तो अगर अपने इस पैटर्न से चलेंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस टू हैव अ स्मूथ सेशन ठीक है सो now let me share my screen with you all and let me know once it is up for everybody. Okay. I think it's taking some time. Bear with me. Yeah, it's So visible. is it up? Yeah. Super good. So अगर आप मेरा देखोगे starting up slide, it does not say welcome to a session. I call it interactive learning webinar. So because I just don't want to be a silent expert who just keep on saying and without hearing others use. So let's make this session interactive. The only problem is that we cannot unmute everyone to avoid the chaos. Therefore, you can take the help of chat box. Okay, so before I start, I just wanted to know what are your expectations from the 60 minutes? आप लोग अपना 60 मिनट यहाँ दे रहे हो आज के लिए ठीक है संडे को वो भी तो क्या सोच के दे रहे हो क्या चाहिए 60 मिनट में आपको प्लीज अपने व्यूज चैट बॉक्स पे लिखें Okay, Atul has started. Hi Atul, for gaining knowledge. Good.
Okay, anyone else? We have 5 minutes for this. Okay, learning new skill set. Ibrahim, hi Sumit. Basic of VBO and Excel, super good. Hi Tarun. Learning new skills. Mohammed Mehboob Sharif, hi. To learn something, super good. Okay. Come on, guys, open up, because if you be silent, then it is no use if I interact a lot, right? So that's the reason chat box is for you. So you are going good. There's no right, no wrong. Whatever you guys are thinking, just put it over here. कोई सही कोई गलत नहीं है. अच्छा, advanced Excel knowledge. Okay, hi Harish, to learn something new. Hi Birendra, learning. Okay, advanced Excel. At least getting some basic knowledge on using Excel. Prabal, sure, Prabal, we'll do that. Okay. Yes, Vivek, I see you have raised hand. You can put the question here. How to use Excel to reduce time and use effectively. Okay. Okay, I see a couple of people raising hands. Okay. Need to develop my Excel expertise. People who are raising hands, there will be open session at the end of that like 15 minutes. तो आपको जो verbal questions पूछे आप उस वक्त पूछ लीजिएगा, but अभी के लिए आप please chat box का use करें. And I'm glad that you guys are participating. Thank you so much. It means a lot. Hi Mohammed, hi Ashir. Most of the company had those guys who are basically very good. Yes. How to use Excel productivity. Okay. ठीक है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है साइट पर. क्या एमटेक करूं प्लानिंग में या ओके टू रिड्यूस टाइम अगर फिर ओके great. Thanks for having such responses, and we are almost aligned to the objective कि ठीक है आपको क्या चाहिए इस सेशन से. मैं भी उसको और थोड़ा सा अलाइन कर दूंगा कि मैं आपको इस सेशन में क्या देने वाला हूँ, इस सेशन से आप फ्यूचर पे क्या पा सकते हो. बट बिफोर इवन गोइंग हियर, ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, या मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो आप कर रहे हो एक्सेल, ठीक है, ये एक्सेल ऐसा नहीं कि यहीं पर होता है. मार्केट में बहुत जगह अवेलेबल है, बहुत सारे टूल अवेलेबल है जो एक्सेल कर सकता है. ठीक है, तो मैं दो चीज आपको यहाँ बताऊंगा. पहली बात कि वाई मैंने प्रोटीनी एज अ प्लेटफॉर्म क्यों चुना अपने एक्सपर्टीज को यहाँ शेयर करने के लिए, एंड दूसरा कि वाई वी आर यूजिंग एक्सेल नॉट एनी अदर टूल. जस्ट टू लेट यू नो, हर टूल का ऑल्टरनेटिव है, एक्सेल का भी मार्केट में ऑल्टरनेटिव है. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्सेल का मार्केट में ऑल्टरनेटिव नहीं है, but still people go with this. So I'll also tell you why people go with this, and third, why we need to do advanced Excel. देखो, आप कोई चीज कर रहे हो, कहीं टाइम दे रहे हो, तो उसका ऑब्जेक्टिव समझना जरूरी है. ठीक है, हवा में नहीं करने का. गूगल शीट. ओके, श्योर आयुष, विल गो देयर. Okay, so let me first focus or let you know what Protani provides, which differentiates from other training platforms. I would not name them. Everybody is doing best at their own. I tell you what ProTrainee provides you. Okay, so no comparison here. Now, what ProTrainee provides you, first of all, ProTrainee provides you a very open platform for both the experts and the people who are taking the, who are being as a trainee over there, to share their expertise. There is no fixed content. मतलब आज मैं कोई भी versatile industries का data से एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा सकता हूँ. आप अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिलेटेड डेटा आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर वो कॉन्फिडेंशियल है प्लीज कोई कंपनी रिलेटेड डेटा यहाँ शेयर ना करें. तो आप अपने क्वेरीज यहाँ रख सकते हो. ऐसा प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग देता है जो अदर जगह पे एक फिक्स कंटेंट कि इतना में इतना ही कंटेंट है, आपको यही पढ़ाना है, यही सुनना है, दैट्स इट. तो ये प्रोट्रेनी अवॉइड करता है. ठीक है, सो इट गिव्स यू अ वेरी ओपन प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट, सेकेंड आपको जो वो करता है कि इट हेल्प्स यू टू गेट अक्वेंटेड विद कॉर्पोरेट एमआईएस प्रोग्राम. एक्सेल कॉर्पोरेट एमआईएस क्या होता है? एमआईएस इज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम. ठीक है, एंड एक्सेल इज डेफिनेटली अ वेरी वाइडर पार्ट ऑफ इट. मैंने अराउंड 60% वो कवर करता है एमआईएस का. बट प्रो ट्रेनी इस सेशन के थ्रू या इस क्या बोलते हैं, ये पूरे कोर्स के थ्रू, ही विल the institute will not only touch on your Excel piece, they will also add some flavors to your advanced usage of Microsoft Word and PowerPoint, जिससे वजह से आप एक पूरा MIS प्रोग्राम एक बहुत ही इकोनॉमिकल फीस में कंप्लीट कर रहे होगे. So it gives you a very a complete corporate MIS package. That's the reason. Secondly, the way Pro Trainee goes through it, it believes in making you conceptually strong and confident. See, one thing we need to remember, that we are the ones who built the machine and tool, not machine has built us. So I understand machine गलतियां नहीं करती, but ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग भी कहीं गलत नहीं होते. but कई बार होता है जो रिजल्ट हमें नहीं दिखता है.
बट वो नहीं, और रिजल्ट्स क्यों नहीं दिखता है, उसको फिक्स करने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो भी हम करें, चाहे वो एक्सेल कर रहे हो या कोई भी आप टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हो, ठीक है। And then third, you will be trained as per industry standard here, because as I said, it gives me a very open platform to explain. I don't have any fixed content here. मुझे यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं बोला कि आपको ये 1 2 3 पढ़ाना है, मैं फ्री फ्लो जा सकता हूँ. So definitely which will help me to add more value to it as a guest expert. Then overall, this they ensure that the program, the way I'm delivering it, is a wholesome program for both graduates and professionals. Because when I was reading through the chats, I see there are many professional related questions, and definitely there's someone who's aspiring for the jobs, and then there are someone who are experienced as well. ठीक है. और आप डे टू डे लाइफ पे आप एक्सेल यूज कर रहे होते हो, बट आप अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट कैसे करोगे, वो बहुत मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सेल. इन टर्म्स ऑफ एक्सेल प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो उस तरीके का होलसम प्रोग्राम वो आपको प्रोट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है. एंड एज आई मेंशन कि वो आपको पूरा कॉर्पोरेट एमआईएस का ही चीज कवर करेगा. तो वहां पर वो वर्ड और पावर पॉइंट भी दे, जिसकी वजह से वो बोनस सेशन में ऐड रहेगा आपका, विच मींस यू आर ओनली पेइंग, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज फॉर एक्सेल, बट इन एज अ in bonus you are getting the word and PowerPoint sessions as well. That's what have been agreed. And last but not the least, अगर कोई MIS एग्जीक्यूटिव के रोल प्ले पे जाना चाहता है, तो उस कैसे कौन सा इंटरव्यूज में कैसे प्रेजेंट होना है, क्या करना है, किस तरीके से इंटरव्यूज के क्वेश्चंस हो सकते हैं, they are going to groom it for you. So all this is going to be done through ProTrainee. That is where it stands different compared to any other training platform. ठीक है. And guys, I'm not a marketing guy, तो मैं कोई marketing नहीं कर रहा हूँ. It's just a way of acknowledging the platform where I'm right now, speaking with you guys. So just I'm being very clear. I'm not a marketing guy. So this is just I'm being acknowledging the platform which ProTraining is being providing it. ठीक है. Now I'll come back to my content thing, which is my forte. Okay. I understand abhi by looking chat that everybody would love to learn Excel, reduce time, efficient, effective, all सारी चीजें मैंने देखी. But as I mentioned कि अपने यहाँ पर though we will be focusing on advanced Excel, but we will start everything from a scratch. So मतलब अगर मान लीजिए कोई इसमें से आर्ट्स का बंदा है जिसने एक्सेल कभी देखा भी नहीं हो, ठीक है, आज के वेबिनार में तो पॉसिबल नहीं कि मैं एकदम से स्क्रैच से स्टार्ट करूं. बट अगर आप कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे होते हो, तब आप जब पर कंटेंट वाइज जो सेशंस चल रहे होंगे, आपको वो एकदम बेसिक से स्टार्ट होंगे. मतलब आपको मैं सम तक के फॉर्मूला सिखाऊंगा, और फिर वहां से लेके जितने भी सम रिलेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है मैं वहां तक लेके जाऊंगा. सो विच मींस वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, बट वी विल एंड अप विद दी having advanced knowledge of that particular piece. But even before going there, ठीक है, first we need to understand why do we need Excel, or rather why are we focusing on advanced Excel. ठीक है. अगर आप ये कोर्स करते हो, ठीक है, तो आपको क्या गेन होगा. So the way we look into it, because every day in day out we are using this, after being trained on advanced Excels, okay, you should be better able to organize the data. Now when I say organize the data, अब देखो आज के डेट पे data is the most powerful thing. ठीक है. आज एक आप किसी भी कंपनी का डेटा, any operations related questions, I would request operation team to answer them. Okay, great. So fine, I'm coming back to my content. तो अगर आज के डेट पे आप देखोगे तो डेटा इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग. आप किसी आज मतलब कोई छोटे से बड़ी कंपनी डेटा पे डिपेंडेंट है. वो इनफैक्ट एक आपका पनवाड़ी का दुकान भी डेटा मेंटेन करता है, एक परचून की दुकान भी डेटा मेंटेन करता है. फर्क ये कि वो एक पेन एंड पेपर एक छोटे से चिट में मेंटेन करता है, और वो बंदा भी डेटा रखता है. बट ठीक है, उसकी परचून की दुकान है, उसकी जितनी की सेल है उतने में खुश है, उसे बड़ा में नहीं, तो उसका वो पेन पेपर में काम चल जाता है. बट व्हेन वी गो फॉर अ बिगर लेवल या स्मॉल स्केल मिड लेवल इंडस्ट्री या एनी अदर लेवल इंडस्ट्री या बिग कंपनीज में, वहां पर आप एक पेन एंड पेपर पे नहीं चल सकता. तो दे गो फॉर सम टूल, ऐसा टूल जो उनको डेटा अच्छे से ऑर्गेनाइज में हेल्प कर सके, ऐसा टूल जो उनको वेरियस एनालिटिक्स और बिजनेस डिसीजन दे सके, ऐसा टूल जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ मर्ज हो सके. तो वो ऐसे टूल खोज रहे होते हैं. तो इसलिए एक्सेल आया पिक्चर में. अब एक्सेल के मुकाबले देयर आर अदर टूल आल्सो ऑफ अदर कंपनी. अगर आप सन माइक्रो सिस्टम का नाम सुने होंगे, तो उनका एक खुद का प्रोडक्ट है कैल्क. तो कैल्क इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एक्सेल. एक्सेल का एक्सेल टूल है, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एक्सेल, लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना एक्सेल है.
एज अ टूल। अब एक्सेल में क्या क्या बहुत सारे फीचर्स हैं, वो हम when we are doing through a detailed sessions we'll go through that, but what I'm trying to bring forward here, the Excel provides lot of fungibility to to link with other platforms, perform various complex formulas, and do much more which other tools do not provide. And कौन से differences है, when we do the registered sessions we'll go over there. But now let's focus that after learning advanced Excel, what are our benefits? Firstly, we will be definitely organizing our data more effectively. Secondly, we'll visualize and manipulate data ethically. When I say manipulate ethically data, मतलब डेटा जो हमारे पास आता है, डेटा क्या होता है, बहुत रफ तरीके से आता है, ठीक है, उनको सही तरीके से सॉर्ट करना, उनको बाइसेक्ट डाइसेक्ट करना टू इंश्योर, और जो रिजल्ट चाहिए उस रिजल्ट के लिए उसको पूरे वे में लाना, उसको मैनिपुलेशन का वर्ड दे रहे हैं, और वो एथिकल मैनिपुलेशन है। मैं नहीं बोल रहा किसी कंपनी का डेटा चुरा के लाना है, ये नहीं बोल रहा मैं। तो वी विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट एंड इवैल्यूएट द डेटा, we organize data more effectively. And since once we started organizing the data more effectively, what we can do, वो हमें इतना लिवरेज देता है कि हम एक पूरा वर्कफ्लो बना सकते हैं, एक पूरा प्रोसेस एफिशिएंसी देख सकते हैं उस डेटा के थ्रू, क्योंकि वो डेटा हमें दिखाएगा कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ रिस्क एरिया है। इनफैक्ट वो डेटा हमें यहाँ तक हेल्प कर सकता है कि हमारे प्रोजेक्शंस देख सकते हैं, हम बजटिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट अपने इन्वेंट्री लेवल्स को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। आई नो आज के डेट पे एवरी इंडिविजुअल चीजों के लिए टूल है, ठीक है, मतलब अगर आपको इन्वेंट्री करना है तो इन्वेंट्री का एक टूल ले लो, या टैली का ही आता है, डाल लो, करते रहो, लेकिन यार सब में इन्वेस्टमेंट लगता है। बट अगर आपको एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां बेसिक सा भी, अगर आपको बेसिक और एडवांस नॉलेज हो जाए और आप चीजें आराम से मैनेज कर लो, इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगा, देयर आर स्टिल मेनी मेनी बिग कंपनीज, यू नो, देयर आर मेनी बिग कंपनीज who are still running the entire process on Excel day in day out. ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, बट दे बिलीव इन अ कॉस्ट कटिंग थिंग, सो दे आर यूजिंग टूल, बट उनका टूल बहुत मिनिमम है, उसके बैकएंड में एक्सेल ही चल रहा होता है, ठीक है। तो मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग चीज है। थर्ड क्या प्रोवाइड होता है, वंस यू गेट ट्रेन्ड इन एडवांस एक्सेल, you can produce lot of critical MIS reports where you can draw some critical storylines which will help your leadership and upper management to take business decision. मतलब अभी आप मोस्ट प्रॉब्ली एक डेस्क पर्सन है जो आप एक रिपोर्ट बना रहा है या कुछ एंट्री मार रहा है, बट अगर आप एक एडवांस लेवल पे जब डेटा को देखना चालू करोगे और उसमें आप चीजें को और एनहांस करके मैनेजमेंट को दोगे, तो वहां आप दूसरों से अलग खड़े होते हो, and there where you become a very valuable resource for the company, because company then seeing you as a person who is looking from company's business. अपने जब जॉब करते अपने सैलरी लेके आ जाते, अच्छी बात है, बट लेकिन यार आप कब तक एक ही सैलरी ड्रॉ करोगे? इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट कि उस बंदे से मैंने अच्छा किया है, तो वो सेंस के लिए आपको भी कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके दिखाना होगा, राइट? तो अगर आप एक्सेल फील्ड पे हो एंड इफ यू वांट टू सी दैट माय रिपोर्ट इज बेटर देन समबडी एल्स, हाउ विल यू शो दैट? मैंने आपने उसको एक्स्ट्रा क्या दिया है कि मैनेजमेंट आपको उस नजरिए से देखे एंड यू मेक यू मोर क्लोजर टू देम, सो वो आपको डिफरेंशिएट करेगा। Now since as I said you will be organizing your data properly, you will be connecting with different departments accordingly, because आपने data organize किया है, आप वहां से बाकी चीजों को sync कर रहे हो, तो since you are syncing, you are like connecting all the dots, you can bring one window platform for the senior management. मतलब for example मान लीजिए कोई senior person है या आपका कोई super boss ही है, वो हमेशा चाहेगा कि मुझे कोई ऐसा एक रिपोर्ट मिले या कुछ एक ऐसा डैशबोर्ड मिले जहां मैं एक ही बार में मेरे लेट्स से डिलीवरी टीम और एचआर की डेटा एक साथ देख सकूं, या रॉ मटेरियल का डेटा वर्सेस क्या बोलते हैं इन्वेंट्री का डेटा, मैंने प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री का डेटा मैं दोनों एक साथ देख सकूं। वो कभी नहीं पसंद कि मैं चार जगह अलग अलग से देखूं, तो वो चीज आपको वहां पर आएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर एडवांस एक्सेल डज। नाउ also advanced Excel helps you to provide answers to the various critical thing, and it also helps you to improve your efficiency, okay? So this is what is the objective of your advanced Excel. Now all this, so I've given you the theory again, like what is the objective of the advanced Excel. Now how are we going to achieve it? I will we almost done with 20 minutes because I've kept 20 minutes for this thing. Now rest 40 minutes or whatever, 30 minutes, whatever we have, we are going to spend some session on practical demos. Okay? Okay, 1 second. I'm sharing my screen and let me know if something is there.
ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, लेट मी नो वंस इट इज अप। ठीक है, तो अभी अपने ऑब्जेक्टिव से बात कर लिए हैं, लेट्स नाउ स्टार्ट द प्रैक्टिकल थिंग। ओके, so ठीक है, now coming to the setting up the right expectations, I see a lot of people thinking that with webinar we'll get this. So this webinar is more of a demo that what you will achieve, but in this one webinar you cannot be a pandit of anything, to be very honest. ठीक है, but here you will get a flavor that what type of trainings you are going to get here, what is the mechanism we will follow, and how you are going, and what are the quick things you are going to learn. तो चलो एक छोटा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So I have taken a example of a US construction company, and हर कंपनी का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, इन्वेंटरी डिपार्टमेंट, एंड सो फोर्थ. Right now I've taken an HR department for a what to say example reference basis. So अगर आप इस डेटा को देखोगे, मैं एक बार के लिए चैट बॉक्स बंद करो अपने पास से, so मैं अब सारे क्वेश्चंस बाद में देखूंगा, ठीक है, अराउंड आफ्टर नेक्स्ट 20 minutes, and would request you not to interrupt any of my flow please. ठीक है, तो अभी ये देखो, ये मेरा कंपनी का एचआर डेटा मैंने लिया, और ये डेटा बाय द इट्स नॉट एनी कंपनीज डेटा, इट इज वेरी हाइपोथेटिकल डेटा अवेलेबल इन गूगल, सो डोंट गेट बॉक्ड इफ यू सी एनी फैमिलियर थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। सो एक मैंने एचआर डेटाबेस ले लिया, अब आप देखो it has various columns, it has employee first name, last name, company name, address, city. Considering it's a US company, I've taken an example, so you have all the city name here, county is the nothing but your local, like local address, what we call it, and then you have state, you have the zip code, phone number, and the email, and gender, and the civil engineering experience. Okay, now let's say it's an employee data, and we have to ensure that this is very much sanitized, so your employee data cannot be blank. If we have all the fields till now, we have to ensure कि यहाँ पर कोई चीज blank ना हो। तो दो तरीके हैं इसको देखने का, या फिर आप ऐसे फिल्टर कर करके देखो, ठीक है, यहाँ ऐसे एक एक करके देखते जाओ, तो जहां जहां मिलेगा फिर उसको आप काउंट करोगे। बट इसका एक दूसरा तरीका भी है जो आप एक क्विक फिक्स में देख सकते हो कि इस पूरे शीट में, ठीक है, ये शीट में अभी खाली 500 डेटा है, बट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि आपको 1000, 2000, 3000 डेटा पे भी काम करना पड़े, तो आप फिल्टर लगा ला के बार बार नहीं देख सकते। और आपको ये भी है कि आपको विद इन 2 minutes और अ मिनट आई वांट टू नो कि पूरे यहां से यहां तक में, ठीक है, कितना ब्लैंक्स है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मुलाज यूज कर सकते हैं। अब फॉर्मूला भी एक होता है सिंपल फॉर्मूला, एक होता है कंपाउंड फॉर्मूला। नॉर्मली जब आप मल्टीपल फंक्शंस को एक बार में देखना चाहते हो तो आप कंपाउंड फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट, व्हेनेवर वी राइट फॉर्मूला, ठीक है, चाहे इसमें बेसिक और एडवांस का कोई डिफरेंस नहीं होता, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है, और उसको अपन हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट करते हैं। नाउ इक्वल टू साइन से क्यों स्टार्ट करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। इक्वल टू इसलिए यूज करते हैं बिकॉज equal to in technical terms is known as functions, and functions are those which always returns values. बिना function के कोई value नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि as I don't know इसमें crowd कैसा है, so I'm trying to put some basics also here apart from the advanced. So that's the reason whichever formula you apply, you always have to put equal to in Excel, because equal to is a function and function gives you values. ठीक है, done. Now I have to find a blank here, and what I have to find कि कितने blanks हैं एक particular range में। So उसके लिए we have a formula called count blank। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर count। अब अगर count को जैसे ही मैंने लिखा, ठीक है, आप यहाँ देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं, एंड हर एक काउंट का जो फॉर्मूला देखिए सारे वाइटल फॉर्मूलाज है जो हम लोग डे इन डे आउट पे यूज करते हैं। सो वी everything we can't go today, but definitely once we are into our registered session, then we'll be focusing on everything. Right now with this example, I'm going to use count blank function. It's a merge of two functions there, count and blank. तो जब आप सेलेक्ट करते हो, so this is equal to sign, which is my function. This is called formula. अब यहाँ पर आप देखो, this is called parameters, ठीक है,
ये पैरामीटर बोलते हैं इसको, जो ब्रैकेट के अंदर होता है। पैरामीटर मतलब क्या बेस है जिससे आपको फॉर्मूला आंसर निकाल के देगा। अभी यहाँ क्या बोल रहा है, रेंज। रेंज मतलब लिस्ट ऑफ सेल्स में से वो सेलेक्ट करने बोल रहा है जिसमें आपको देखना है ब्लैंक। तो मैं अपना रेंज यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने सेल नंबर, और अच्छा कहाँ से सेल, मैं कौन से सेल पे करंट स्टैंड हो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो मैं, अगर आप देखोगे टॉप मोस्ट पे A4 पे मैं स्टैंड हूँ, एंड A4 टू मैंने रेंज ले लिया 507 तक का, ठीक है। अभी मैंने इसको एक तरह के फिक्स रेंज ही आप बोलो मैंने दिया, ठीक है। मैंने डेफिनेट सेल सेलेक्ट किया, एंड इफ यू सी मैंने इन अ वेरी नैनो सेकंड आई हैव सेलेक्टेड द होल थिंग। तो ये मैंने कैसे किया, आई हैव प्रेस कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन। आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन या कंट्रोल शिफ्ट अप करके एक बार में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को डेटा आप इजिली कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये ना, तो यहां देखो जीरो आया है, अच्छी बात है। सो आई, मैं इस फॉर्मूला को पैरेलली ड्रैग कर देता हूं। तो जब मैंने ड्रैग किया, आप देखो क्योंकि मेरा सेल रेंज A4 से लेके 504 रोज के बीच में था, आप देखो यहाँ वो एक बार में दिखा दे रहा है कि यहाँ पर 6 ब्लैंक है, which means this data is not signed in, I have to fix something here. And I also know कि यहाँ पर भी एक ब्लैंक है। So in within a minute you came to know कि आपकी शीट में कितना ब्लैंक है, right? So this is a sort of compound formula help us to progress quickly, ठीक है। अभी चलो दूसरे एग्जाम्पल को देखते थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। Harinder, can you put your question on chat box, please? I see you raising hand. If it is content wise, otherwise you can direct it to the operation team. अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन है आप कंटेंट बॉक्स पे डाल दीजिए, मैं देख के उसको आंसर कर दूंगा। ठीक है, अभी अपन चल रहे हैं दूसरे डेमो पे। अभी दूसरा डेमो ये बोल रहा है, थैंक यू। दूसरा डेमो ये बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अभी अगेन कमिंग टू सेम डेटा पॉइंट, मेरे को ये पूरा डेटा, हमें जब डेटा मिलता है बहुत ही रॉ फैक्ट में मिलता है, ठीक है। वी एज एन एक्सपर्ट इन द सेंस जो भी एमआईएस का काम कर रहा होता है, एक्सपर्ट नॉट मी, लेट्स से इफ यू आर आल्सो डूइंग एनी रिपोर्ट, यू हैव टू इंश्योर योर डेटा इज टोटली सैनिटाइज्ड। व्हेन आई से इट इज सैनिटाइज्ड इन द सेंस योर डेटा इज करेक्ट, यू आर कॉन्फिडेंट दैट योर डेटा इज करेक्ट, ठीक है। कहीं इनफैक्ट अगर मान लो डेटा कहीं दूसरे सोर्स से आया है, तो कॉस्मेटिक चीज जो उसकी, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरा ओवरऑल डेटाबेस ठीक है। बाकी अगर कंटेंट में कुछ ऊपर नीचे हो तो वो सोर्स पे डिपेंड करता है कहाँ से वो आया है। तो अभी अपने देखते हैं कि मेरा क्या ओवरऑल डेटा से ठीक है कि नहीं। तो अगर ये एम्प्लॉय डेटा है, ठीक है, तो एम्प्लॉय डेटा में आइडियली डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दो विशाल हो सकते हैं, बट उनकी इंप्लॉय आईडी अलग होगी। एक का हो सकता है V004 हो, एक का V05 हो। V004 से दो आईडी नहीं हो सकती। अगर ऐसा डेटा है तो मतलब गलत है। दो एड्रेस, एक ही दो विशाल के एक एड्रेस हो सकते हैं, एक कंट्री हो सकता है, स्टेट हो सकता है, बट कुछ तो होगा जो डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एटलीस्ट उसकी इंप्लॉय आईडी तो डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। तो अब ऐसे यहाँ पर आपको बहुत सारे फील्ड्स है, तो हाउ विल यू नो कि वेदर देयर आर एनी डुप्लीकेसी इन द डेटा और नॉट। सो एन ऑर्थोडॉक्स मेथड और वेरी ओल्ड मेथड या बहुत ही बेसिक मेथड बोल दें कि ठीक है पूरे शीट को सेलेक्ट करो और यहाँ पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दो, ठीक है। तो चलो पहले ओल्ड मेथड अप्लाई करते हैं और फिर मैं बताऊंगा एडवांस मेथड आपको। तो ओल्ड मेथड में मैंने क्या किया, मैंने ये लिया, मैंने शीट को सेलेक्ट किया। अगेन आई एम यूजिंग अ शॉर्टकट, मुझे राइट जाना था, मैंने कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो सेलेक्ट किया है। अब मुझे एक बार नीचे जाना है, तो मुझे इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग वाया माउस मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो सेलेक्ट करूंगा, तो वह पूरा सेल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने वो माउस का स्क्रॉल बार मैं यूज नहीं कर रहा हूं। So while I'm giving you this demo, I'm trying to tell you that even shortcut keys will be explained during the session, which will help you to work more faster. Anyway, keyboards are much faster than your mouse. ठीक है। तो एक सेकंड, सॉरी, 1 सेकंड। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ व्हाट आई डू, अच्छा
ये पूरा पूरा वर्कबुक है, ठीक है। मैं एक बार बता दूं, ये इसको एक्सेल का पूरा वर्कबुक बोलते हैं। ये जितने जितने आप टैब्स देख रहे हो ना, इसको एक्सेल शीट बोलते हैं। ये पर्टिकुलर जो एरियाज जो आप देख रहे हो ना, ये सारे ये वाले, इसको रिबन बोल रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिबन एक्सेल के लैंग्वेज में। और ये उसके डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है, होम टैब, पेज लेआउट टैब। अब कौन से टैब में क्या मिलेगा या कैसा आप इजीली नेविगेट कर सकते हो, व्हेन वी आर गोइंग थ्रू अ डिटेल सेशंस वी कैन एक्सप्लेन यू दैट। अभी के लिए मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए, वो मुझे होम टैब पे मिलेगी, ठीक है। एंड होम टैब में बहुत सारी चीजें हैं। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैं गया, इसके भी बहुत सारी डिफरेंट वेरिएशंस है जो हमें डेटा प्रेजेंटेशन वाइज डिफरेंट तरीके से यूज करनी चाहिए, और जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैफिक सिग्मा रूल्स टू योर डेटा बार रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, मैक्स मिन, सब यूज होता है। अभी के लिए अपन सिर्फ डुप्लीकेट पे फोकस कर रहे हैं फॉर दिस एग्जाम्पल। सो यहाँ गए अपने, एंड आई सेट सेलेक्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। सो आप इसको इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको एक लिमिटेड ऑप्शन दिया है यहाँ पर कि ठीक है, जो भी डुप्लीकेट उसको लाइट रेड कर दो, ये कर दो। बट आप फर्दर कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हो, विच वी कैन डू इट इन अ डिटेल सेशन। राइट नाउ इज जस्ट अ डेमो, फाइन। सो दिस इज माय ऑर्थोडॉक्स मेथड आई हैव अप्लाइड। नाउ आई सी लॉट ऑफ डुप्लीकेट्स हियर, ठीक है। अभी मेरे को लेट मी सी वेदर आई हैव एनी डुप्लीकेट इन एम्प्लॉय और नॉट। तो देखो, अब यहाँ पर आपको, अगर इसको विंडो को हम थोड़ा सा छोटा करेगा, ठीक है। Let me know what you एक मिनट। एक सेकंड। वन सेकंड, आई थिंक शीट में थोड़ा सा भारी हो गया। अब देखो, कंडीशन फॉर्मेटिंग का दो प्रॉब्लम होता है। पहली बात, जैसे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हो, आपका शीट का वेटेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका डेटा बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। बट पूरी शीट में नहीं लगा के अपने लिमिटेड एरियाज पे भी लगा सकते हैं। बट अगर मैं देखूं तो यहाँ देखो, मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग लाल, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है एक बार में कि कितने सारे एरर्स है जो मुझे फिक्स करने हैं। ये मुझे नहीं दिख रहा, मुझे पर एरर को ऐसे ऐसे जाके देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिल्टर बाय कलर करो। अच्छा, इस सेल में इतने डुप्लीकेट्स है, अच्छा इस सेल में इतने, तो मुझे नोट करना पड़ेगा। तो विच इज एन एड ऑन प्रोसेस। लेट मी शो यू द एडवांस प्रोसेस, जो आपको इजिली आप चीजों को डिटेक्ट कर सकते हो। दिखाता हूं आपको। मैंने पहले सारा फिल्टर क्लियर कर दिया, ठीक है। एंड मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग शीट से हटा रहा हूं, बिकॉज इट मेक्स योर शीट वेरी हैवी, विच लीड्स टू हैंगिंग ऑफ योर शीट। So just bear with me for a moment. ठीक है, तो मैं एक बार के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ पूरी शीट से, ताकि हमारा सेशन इजीली चले। तो मैं वहां हटाने के लिए वापस से होम टैब में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। इसका मतलब ये नहीं कंडीशन फॉर्मेटिंग खराब है, यूज होता है पर लिमिटेड यूज करना पड़ता है जहां जरूरत हो खाली। अब मैं आपको एडवांस मेथड दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड करा, यहाँ पर लिखा मैंने डुप्लीकेट चेक। और यहाँ पर एक फिर से मैं कंपाउंड फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट इफ का। इसमें दो फॉर्मूला मर्ज है, काउंट एक अलग फॉर्मूला है, इफ एक अलग फॉर्मूला है। इफ लॉजिकल फॉर्मूला है, काउंट आपका चेक फॉर्मूलाज में आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से उठाया काउंट इफ। फिर यहाँ देखिए, अब दो पैरामीटर्स है, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज मेरा ये है, ठीक है। क्राइटेरिया, वन सेकेंड, हाँ रेंज मेरा ये है। एंड ये मेरा क्राइटेरिया है कि कितनी बार ये पर्टिकुलर आईडी रिपीट हुआ है, ठीक है। और मैंने इसको ड्रैग कर दिया। तो अभी यहाँ देखो, जो वन है तो हमको टेंशन नहीं है, पर अगर मैं इसको फिल्टर करूं, मुझे देखो एक बार में दिख जा रहा है कि दो दो आईडीज कहाँ कहाँ डुप्लीकेट है। तो सी वन शॉट आई केम टू नो कि यहाँ इश्यूज है, मुझे ये फिक्स करना है। अब सिमिलरली द बेस्ट पार्ट इज दैट मैंने एक बार इसको फॉर्मूला लगा दिया है,
मैं इसको दूसरे कॉलम्स में बिना वापस रिपीट के एप्लीकेबल कर सकता हूँ। मतलब मुझे सिर्फ ये इसको ऐसे करना है, कंट्रोल सी, और लेट से कहाँ लगाना है, जहां भी लगा लो आप, मान लो इसके बगल, फर्स्ट नेम के बगल में लगाना है, इंसर्ट, राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉपीड सेल्स। तुम देखो ऑटोमेटिकली सबके अगेंस्ट में ये रिजल्ट देता जाएगा। मतलब आप एक बार एक जगह फॉर्मूला लगाओ और फिर उसको इंसर्ट कॉपीड सेल्स करते जाओ एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑल आंसर्स। तो मतलब विद इन अ मिनट और टू यू इजीली नो व्हाट आर द डुप्लीकेट्स, whether those duplicates are really impactful, and how many of those cases are there where you literally need to put your head। ठीक है, तो ये एक तरह का आपको एक इजीली आप, बिकॉज यू हैव यूज्ड टू फॉर्मुलाज, अगर आप इसको तोड़ तोड़ के करते तो पहले आप काउंट निकाल रहे होते हैं, फिर उसको आप इफ एंड एल्स लगा रहे होते हैं। मैंने दो फॉर्मुला मर्ज कर दिया, दिस इज व्हाट द पावर ऑफ एडवांस, यू हैव मर्ज द टू फॉर्मुलाज एंड यू केम टू नो द रिजल्ट इजीली। ठीक है, और सबका देखो अपने आप आपको दिख जा रहा है, कहीं पर यहाँ पर देखो, यहाँ नाम दो बार रिपीट हुआ है, बोल रहा है, यहाँ है, तो आपको ये चीज दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप डेटा साइंटिस्ट देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर डेमो। अभी सबसे फेवरेट टॉपिक, ठीक है, वी लुकअप, which is very common everywhere, whichever industry you go, whichever data you go, we lookup is very common। ठीक है, now and one thing I just want to tell you guys, that when for Excel एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, everybody has their own way of finding out the answers। ठीक है, there is nothing fixed way of getting an answer, but how quickly you can do, like I can, if you give me this entire exercise, I can complete in 5 minutes and move on। So right, maybe some people will be finding it slow, and I'm calling it out because I don't want to mislead people। I'm finding it slow because I'm going very step by step, otherwise using shortcuts, यहाँ पर कुछ साबित नहीं करना है, यहाँ ये दिखाना है कि आपको सेशन में क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, और there are no right no wrong, there are multiple formulas here which you can apply and get the answer। ठीक है, तो अभी चलो अपने इस पे चलते हैं, लुकअप पे। अभी वी लुकअप बहुत कॉमन चीज है, वेयर वी अंडरस्टैंड कि हमें क्या हेल्प करता है। वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो हमें एक जगह से मतलब एक वर्कबुक बोलो या मल्टीपल वर्कबुक बोलो, वहां से डेटा मूव करने में हेल्प करता है। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक डेटा है, चलो इसको लेते हैं, ये मेरे पास एचआर डिटेल, और मेरे पास एक कहीं दूसरे से शीट आई है जिसमें मुझे पूरा एचआर डिटेल लेके आना है। अब ऐसा भी हो सकता है इसमें कि कुछ एम्प्लॉइज नए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ एम्प्लॉय नहीं भी हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि सारा होगा मेरे पास। तो पहले तो ये देखना कि पहले हमको डेटा यहाँ लेके आना है। ठीक है, तो अभी लुकअप दो तरीके के लुकअप होते हैं। और लुकअप क्या है, लुकअप आपका सर्च फंक्शन है। अच्छा, आप बार बार देखोगे मैं अलग अलग फंक्शन से फॉर्मुलास का नाम ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, द रीजन बीइंग, अगर आप फॉर्मुला टैब में जाओगे, ठीक है, देखो यहाँ सारे फॉर्मुलाज को, जितने भी एक्सेल में फॉर्मुलाज हैं उनको क्लब करके कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। फाइनेंशियल फॉर्मूला, लॉजिकल फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला, डेट एंड टाइम फॉर्मूला, लुकअप फॉर्मूला, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड मेनी मोर, ताकि जो जिस फील्ड का है वो इस तरीके से यूज कर सके। और अब हर एक फॉर्मूला का एक्सप्लोर करोगे, मैं आई कैन गारंटी यू, ओके, आई कैन गारंटी यू, nobody in the world till now can say he's 9/10 on Excel, because जिसने एक्सेल बनाया उसको खुद नहीं पता उसने कितना कुछ बनाया हुआ है। So, but what person says even in interviews, okay, nobody rate themselves as I know 8/10। ठीक है, कोई नहीं करता है। तो reason being, but what we can say, we are always proficient in Excel, or we always rate us 7/10 or 6/10। Reason being, what we have done here, हमारे डे टू डे इन लाइफ या मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट, कॉमन और मोस्ट क्रिटिकल फॉर्मुलाज क्या होते हैं, हम लोगों ने वहां से वहां से सारे फंक्शंस निकाल लिए। So when you are going through the detailed session, you will be also learning financial functions, you will be learning logical functions, you will also learn text function, date and time, lookup, reference, everything you will learn, but extracts out of it which will make value to your current scenario। अभी आपने क्लास 10 में अल्फा बीटा गामा पढ़ा था, वो मैं इसमें से निकाल के दूंगा तो कोई काम नहीं आने वाला, राइट? तो वो चीज अपन नहीं करेंगे, जो कि वो भी इसमें है। तो जिनको जहां रिक्वायरमेंट है, वी गो विद दैट, बट लुकिंग द इंडस्ट्री वी आर इनटू इट, वो अभी हमारे यूज में नहीं है। ठीक है, so similarly lookup function belongs to your lookup and reference में। अब there are two types of lookup, one is your horizontal lookup and one is your vertical lookup। when we talk about vertical lookup मतलब वो डेटा को vertically सर्च करके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, which is this, ऐसे, ठीक है, ऐसे सर्च करना। और हॉरिजॉन्टल लुकअप मतलब क्या होता है कि वो डेटा ऐसे सर्च करेगा और आपको वहां से आंसर देगा। और दोनों का डेटा फॉर्मेट भी अलग है, ओके, दे आर नॉट इन द सेम फॉर्मेट।
दोनों का डेटा फॉर्मेट भी अलग है। तो अभी मेरा डेटा अगर आप देखोगे, 1 सेकेंड, हाँ, अगर आप मेरा डेटा देखोगे, दिस इज ऑन अ वर्टिकल साइड एंड यहाँ भी वर्टिकल है बोल के अपने VLOOKUP यूज करेंगे। तो चलो फटाफट करते हैं। So right now with interest of time, I'm moving quick a bit fast so that मैं बाद में Q&A सेशन के लिए वो खोल सकूं। तो VLOOKUP, अपने VLOOKUP 1 सेकंड, फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू V फॉर वर्टिकल, लुकअप का फॉर्मूला, ये पैरामीटर्स आ गए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, कहां से चाहिए, टेबल आ रहे बता रहा, मुझे इस शीट से चाहिए, इस शीट से चाहिए, ठीक है। इस शीट से तुमको क्या चाहिए, मेरे को फर्स्ट नाम डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो VLOOKUP वैल्यू A2, मतलब वो एम्प्लॉय आईडी इस शीट में खोजो, और जो पहले के और इस शीट में से मुझे पहला नाम निकाल के दो उस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट, मुझे ये चाहिए। तो पहला नाम कौन से कॉलम पे है, अपने सेकंड नंबर कॉलम पे है, तो अपने इसको यहाँ कॉलम रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। और फिर ट्रू फॉल्स मतलब क्या, ट्रू को 1 से बोलते हैं, फॉल्स को 0 से। 0 मतलब एग्जैक्ट मैच। मान लो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस ऐसा है और सबके कोड अलग है, अगर आप 1 देते हो, ठीक है, मतलब अगर आप ट्रू दे दोगे, तो अगर आपकी पूरे डेटा में रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर है और रिलायंस इंफ्रा नीचे, तो रिलायंस इंडस्ट्री का डेटा पहले दे देगा, जो कि गलत है क्योंकि आपको चाहिए था रिलायंस इंफ्रा। तो अगर आप चाहते हो कि जो हम चाह रहे वही मिले, विच इज वी आर आस्किंग फॉर एग्जैक्ट मैच, उसके लिए अपने 0 पैरामीटर लेता है, ठीक है। तो अपन ये करके इसको एंट्री मार दी, तो देखो ये आ गया नाम, बट अब मेरा फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी देखो यहाँ पर NA आया। अब 2 रीजन है। अब पहली बात ये, यहाँ पर अब आपका एक्सपर्टीज काम आएगा। 2 चीजें, आपको पहले कॉन्फिडेंट होना है कि आपका फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो मेरा फॉर्मूला तो सही है, लेकिन फिर NA क्यों आया। अब इसको भी आपको, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि NA क्यों आया। दैट्स व्हाट वी विल गिव यू ओवर हियर, मेकिंग यू कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग। तो 2 रीजन से NA हो सकता है, आइदर जिस शीट से आप डेटा प्रोक्योर कर रहे हो वहां पर वो डेटा है नहीं, ठीक है, राइट, या क्या अगर हम रिवर्स देखें, कुछ तो कुछ इश्यूज है, डेटा वहां पर है पर यहाँ नहीं आया। तो चलो देखते हैं एक बार अपने E009, I quickly go over here, I go to E009, I see कि data is here but still it has not come. तो VLOOKUP, अच्छा, VLOOKUP works on a, जितना ही वो अपने डेटा के ऑर्डर पे डिपेंड है कि किस ऑर्डर पे कॉलम खड़ा है, क्योंकि वो लेफ्ट से सर्च करता है, उतना ही वो उस पर्टिकुलर डेटा के फॉर्मेट पे भी डिपेंड है। अब मेरे को एक एक फॉर्मेट तो मैं ऐसे कर्सर कर करके तो नहीं देख सकता, राइट। तो हाउ विल आई नो कि कहीं फॉर्मेट कुछ डिफरेंस है कि भी नहीं। फॉर्मेट में क्या हो सकता है, स्पेस एक्स्ट्रा हो गया होगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो इसका शॉर्टकट है चेक करने का लेंथ। सो अगर मैं एक पर्टिकुलर डेटा का लेंथ चेक कर ले तो हमें फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि फॉर्मेट डिफरेंस है कि नहीं। तो चलो एक बार फटाफट वो चेक करते हैं। एंड लेंथ इज अगेन इट्स अ डिफरेंट फॉर्मूला, वो लुकअप फॉर्मूला नहीं है, इट कम्स फ्रॉम मैथ, ठीक है। तो अपने यहाँ पर लेंथ लगाते हैं, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू LEN। अपने एक पर्टिकुलर लेने में को सिर्फ इसको एक चेक करना है, तो मैं एक को सिलेक्ट कर लिया। चलो दिख गया मुझे 4 है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं वापस आया यहाँ पर, मैंने सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई किया, इक्वल्स टू लेंथ। अब मुझे यहाँ दिखा 5 है। नाउ दैट 2 थिंग्स कैन हैपन, आइदर मैं उसको 5 वहां बना दूं या इसको 4 बना दूं, लेकिन वो हम लोग कभी भी अपने ओरिजिनल डेटा को नहीं छेड़ते, तो अपने इसी डेटा को वो करेंगे। तो अब मेरे को इसको फिक्स करना होगा। तो आइडियली हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज अपने को बॉस को रिपोर्ट देना होता है, वी फिक्स फ्रॉम द बिटवीन। आई विल आस्क यू स्टॉप दिस, नॉट टू डू एनी फिक्सिंग फ्रॉम बिटवीन, ऑलवेज फिक्स योर फॉर्मूला फ्रॉम द टॉप, ठीक है। सो ताकि आपका डेटा स्टैंडर्डाइज है, दैट्स व्हाई यू बिकम योर ऑर्गेनाइज एंड स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ डेटा, राइट। क्योंकि बार बार फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते, या नहीं चेंज करो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से एक फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मेरे को बेसिकली ये समझ में आ गया, ये स्पेस बिकॉज ऑफ स्पेसिंग इशू हुआ है, ठीक है। तो ये 5th है, तो मैं सबका स्पेस मुझे को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ट्रिम का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ट्रिम इज यूज्ड टू रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस यू हैव, ठीक है। मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने ऊपर से लेके नीचे तक लगा दिया, एक सेकंड, ठीक है। अब वापस से VLOOKUP लगाते हैं, लेट्स सी वेदर इट विल वर्क। VLOOKUP this value from HR detail, same concept, ठीक है। and now I'm saying, now you see you got। so जैसे मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताया VLOOKUP का, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने आपको इन अ डिटेल सेशन यू कम टू नो कि क्या क्या कॉन्सेप्चुअली एरर हो सकता है जहां आपका फॉर्मूला सही है, बट बिकॉज ऑफ दोस यू नो स्मॉल इंटीग्रिटीज एंड
things are not popping up. And if you know the cause, or if you know conceptually the thing, you can easily go and hit that area. नहीं तो आप एक एक करके स्क्रॉल करते रहोगे और देखते रहोगे कहाँ गलती हुई, जो मैं भी करता था इनिशियली, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था. ठीक है, so now let's go to another demo. अभी इसमें मेरे को क्या देखना है, चलो अब थोड़ा सा ना ये तो मैंने आपको फॉर्मूलाज के बारे में बता दिया. अब मैं चलो ये दिखाता हूँ कि कोई भी रिपोर्ट को आप अगर आप प्रेजेंट करते हो तो विजुअली जितना लोगों को समझ में आता है और लोग विजुअली जितना डेटा को एनालाइज करना चाहेंगे उतना उनको ये थ्योरी देखने में थोड़ा सा टफ होता है. ठीक है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट. तो मैं इसके लिए चलो एक दूसरे डिपार्टमेंट में चलता हूँ, इन्वेंट्री डिटेल्स बोल के, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसमें इन्वेंट्री भी होगी. ठीक है, तो अब मैं अगर इन्वेंट्री की बात करूं तो मैं आपको एक बार पहले डेटा समझा देता हूं and then I'll move towards a visual representation. So okay, now if you see the first columns talk about the raw material, and you different raw materials. Okay, 1 2 I just give a dummy name for the material. Then you have a grade of those material, grade A, grade B, grade C. Who are the suppliers of those raw material, वो मैंने यहाँ दे के रखा है. And what are the unit we are having for it, वो मैंने यहाँ दे के रखा है. And at the end of the day, कौन सी कंट्री उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, कुछ क्वालिटी के लिए कैसा यहाँ दे रही है, वो मैंने दे के यहाँ रखा हुआ है. ठीक है, तो अभी अगर मैं इसमें से आपको अचानक से मैं पूछूं कि मुझे ये जानना है कि इंडिया एज अ सप्लायर वो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट देता है और किस प्राइस पे देता है और कौन सी क्वालिटी ग्रेड में देता है, हाउ विल यू शो दैट टू मी इन अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन. दो तरीके, या फिर आप इसको ये तो अभी छोटा डेटा है तो इट्स क्वाइट इजी, बट बिग डेटा में आपको प्रॉब्लम ज्यादा समझ में आएगी. आप इसको ऐसे फिल्टर करो, आप फिल्टर करके मेरे को दोगे. अगर आप जैसे ही फिल्टर लगाओगे यहाँ देखो ये डेटा गायब हो जा रहा है. या फिर आप फिर सेकंड स्टेप क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे और फिर इसके बेस पे चार्ट क्रिएट करोगे. तो इतना सब नहीं करके अगर आपको एक एक्सेल एक ऐसा क्या बोले एक कोई वे दे दे जिससे आप इजिली बाइसेक्ट एंड डाइसेक्ट डेटा वाइल रिप्रेजेंटेशन ही कर सको, इज इट नॉट योर लाइफ इजी? Your bosses will be also happy. So let me show you how we are going to do that. So what we are going to do that, we are going to take help of pivot chart. I'll also show you pivot table, but since I'm already talking about the visual representation, I'll talk about pivot chart. And when I'm talking about charts and graphs, see, you have many options for charts and graphs, okay? But remember one thing, all charts are not used for everything. And all charts and graphs cannot be used with the same set of data. आपका डेटा का ऑर्गेनाइज करना भी उसी तरीके से होगा जिस टाइप का आपको चार्ट चाहिए. और सारे चार्ट, सारे ग्राफ एक ही डेटा पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं. ठीक है, मतलब आप इस डेटा पे पाई चार्ट यूज नहीं कर सकते. मैंने ये पूरे सेट को सेलेक्ट करके मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसको पूरा सेलेक्ट करके पाई चार्ट करूँ, इट माइट नॉट गिव यू द राइट रिजल्ट. ठीक है, तो चलो अभी मैं एक एक करके चलते हैं. तो अभी मेरे को बाइसेक्ट एंड डाइसेक्ट देखना वाया विजुअल रिप्रेजेंटेशन. तो मैं क्या किया, मैंने पिवट चार्ट बनाया. ये देखो, अब यहां मैं दिखाता हूं आपको. अभी ये जैसे यहां आप देख रहे थे, अगर मैं पहले वाला इस पे जाऊं, 1 सेकेंड, अभी यहाँ देखो, यहाँ कोई बाइसेक्ट डाइसेक्ट नहीं कर पा रहा, इट्स ऑल फ्लैट हियर. ठीक है, सब एक साथ ही दिखा रहा है. But if you go over here, okay, now if your let's say your boss wants to know how my I want all the details of raw material one, like who are the suppliers, what price they are providing, कैसे क्या है, उसको सब बाइसेक्ट डाइसेक्ट करना है. वो आराम से जाएंगे इस चार्ट पे, they can just click on raw material one अगर वो raw material perspective से देखना चाहते हैं, and you will come to know that for raw material one, China, Germany, India and Japan and Singapore are my suppliers and they are providing at this rate. ठीक है, मैंने इसमें ग्रेड ऐड नहीं किया. अगर आप ग्रेड ऐड करोगे तो वो भी आपको दिख जाएगा. एक सेकेंड, अगर आप ग्रेड ऐड करते हो उसमें, लेट मी ऐड द क्वालिटी ग्रेड. तो देखो आपको यहाँ ग्रेड्स भी दिखा दे रहा है कि ठीक है, चाइना आपको रॉ मटेरियल वन जो है आपको 2 ग्रेड्स में प्रोवाइड करता है. आपका जर्मनी जो है वो आपको एक ग्रेड. तो यू कैन you can just analyze and bisect and dissect data into various way. Like if you just want to go from a quality wise, ठीक है, कि मेरे को क्वालिटी के हिसाब से अपने डेटा को प्रेजेंट करना है इन वन शॉट. तो मैं गया यहाँ पर, मैंने अपने लेट्स से मुझे 2 ही क्वालिटी को एनालाइज करना है, क्वालिटी ए एंड लेट्स से हाईएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट क्वालिटी. मैंने सेलेक्ट किया and I come to know कि okay, this is how my range starts with. So in one shot
you are able to analyze and dissect the data in a very presentational way. एंड इसको आप डैशबोर्ड पे भी डाल सकते हो, ठीक है. डैशबोर्ड विल डू इन आवर डिटेल सेशंस. डैशबोर्ड अभी दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट आई जस्ट शोड यू हाउ योर डायनामिक डैशबोर्ड कैन लुक लाइक, यू नो. Then let me show you something more. While I was talking about pivot chart से पहले let's go into the pivot table also. ठीक है. अभी again I'm jumping back to my what to say, employee database to show the pivot thing. Okay, we still have 9 minutes to go. It will not take much time. तो अगर मान लो मुझे ये जानना हो, ठीक है, मुझे अलग अलग तरीके से डेटा जानना हो, मुझे ये जानना है कि कौन से स्टेट से कितने एम्प्लॉइज आए हैं मेरे पास और उनका जेंडर पॉपुलेशन क्या है, लाइक व्हाट मिक्स पॉपुलेशन आई हैव इन द कंपनी फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट. तो अगर ऑर्थोडॉक्स मेथड में जाए तो आई कैन अगेन गो एंड अप्लाई फिल्टर काउंट एंड गिव ऑल थिंग्स आई कैन डू. बट अगर मैं पिवट टेबल का हेल्प लेता हूँ, इट कैन इजिली हेल्प मी टू do the required analysis. Now when we are doing pivot table, usme bhi there are different ways to arrange your data. That all will be taught in the detailed sessions. So right now agar mere ko maine pivot table ke help se maine ye nikala ki these are the states. Let's say Arkansas have 6 people, Arizona has 1 people, fir tumhara California has 72, and unka population kya hai I can easily see here ki theek hai, this is a contribution you are having. Now let's say you only want to show your data based on California and Arkansas. How will you show? With the civil engineering experiences of 7 years. ये आप कैसे दिखाओगे? तो मैंने क्या किया, मैंने स्लाइसर का यूज कर लिया इस शील्ड में. आप अगेन ऑर्थोडॉक्स मेथड में यू विल अप्लाई फिल्टर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा. मैं बोल रहा हूँ एडवांस मेथड में चलते हैं. तो एडवांस स्लाइसर का यूज किया है. And I'm just selecting the state. मुझे जो चाहिए अरकानसास चाहिए था, कैलिफोर्निया चाहिए था लेट्स से, एंड मुझे कितना 3 साल सिविल इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस वाले का डेटा चाहिए था. मैंने ये लो निकाला यहाँ पर. तो मुझे ये दिख गया कि अगर मैंने जब 3 सेलेक्ट किया तो मुझे ये समझ में आ गया कि अरकानसास में 3 साल वाले हैं ही नहीं कोई, वो सिर्फ कैलिफोर्निया में ही है एंड उनका पॉपुलेशन ये है. ठीक है. तो आप बोलोगे फिर अरकानसास में कौन सा पॉपुलेशन है, कैसे पता चलेगा? तो अगर आपको वैसा देखना है तो आप सिर्फ अरकानसास सेलेक्ट करो. ये देखो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया. सो आई केम टू नो कि वी हैव पीपल ऑफ 1 year experience, 4 years experience, 2 years experience, 7 year experience with the contribution of female and male genders and others as well. ठीक है. सो इस तरीके से आप डेटा को बाइसेक्ट डाइसेक्ट भी यहाँ कर सकते हो. सो दिस इज ऑन योर पिवट. And similarly, there are other more functions, okay, which will help you to speed up your report and prepare the analytical dashboard and many more. Okay, so this 60 minutes are definitely not enough, and you definitely need to go through the detailed courses on it. So would request you to have a fun learning interactive session and getting the conceptual clear. Please register on the links. I think this guys team would have already provided, and register yourself for your courses, which I think we are going to start somewhere in from 17th of March. And we all can meet up over there, and then we can go to the detailed session. Thank you for your time and patience. I'm opening I think operations team can open their window for the questions, because some people were raising hands. So if there are any questions, I just want to hear them out for 5 minutes, and then I think we are good to close this session. Happy weekend to all. So yeah, over to you, operations guys, and people, if you want to ask any questions on content. Learner, whoever wants to ask questions, kindly raise hand. We'll be in a queue, and the expert will answer everyone's question. Yes, please go with the content related question right now. I think Amit has raised hand. Okay, couple of people. Amit is there. Gajendra is there. Okay. Yeah. I think Gajendra has raised hand. Farhan. Okay. Question, please. Kindly drop questions in chat box. How to make pivot table. Okay. Yes, BVA will be there, Gajendra. And how to make pivot table, I'll quickly show you. It will not take much time. For example, I want to create a pivot table from here only. Okay.
So I'm back to, I think my screen is still up for everyone, right? Yes, sir. सुपर गुड. सो देखो मैंने ये सबको मुझे इस पूरा डेटा का पिवट टेबल बनाना है, ठीक है, सिंपल. तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट से लेके पहले मैं लास्ट तक अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया. याद रखना बीच में अगर कोई ब्लैंक हेडिंग रहा तो इशू करेगा, ठीक है. फिर मैं इसको नीचे लेके आया यहाँ से यहाँ तक. एक मिनट रुको, डेटा थोड़ा हेवी है तो इट इज टेकिंग टाइम, प्लीज बेयर विथ मी. एक सेकंड. सो आई एम डूइंग कंट्रोल शिफ्ट एरो से राइट गया, कंट्रोल शिफ्ट एरो से डाउन आया. अब देखो दो तरीके हैं पिवट बनाने के भाई. अगर आप इसको सेलेक्ट करके आप इंसर्ट में जाके पिवट टेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. एक ये मेथड है और इसका शॉर्टकट भी है ऑल्ट डी पीपी, ठीक है. तो अगर हम ऑल्ट डी पीपी करते हैं तो देखो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, वो कि आपको ये कहाँ करना है, ठीक है. कैसा रिपोर्ट चाहिए, एक्सटर्नल चाहिए. जैसे मैंने बोला ना कि एक्सेल बहुत सारी चीज है, तो मेरे को पिवट टेबल से भी मतलब है, तो मैं सिर्फ पिवट टेबल पे ये सेलेक्ट करने दूंगा, नेक्स्ट करूंगा. अच्छा, ये जो बॉक्स है इसको विजार्ड बोलते हैं. इट्स लाइक मतलब आपको हेल्पिंग बॉक्स आता है जो आपको हेल्प करता है कि कैसे कैसे स्टेप फॉलो करना है. तो आपको बता रहा है कि डेटा क्या यूज करना. हमने डेटा ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है. याद रखना इसके बीच में कोई भी ब्लैंक हेडिंग नहीं हो. अगर ब्लैंक हेडिंग होगी आपके पिवट में एरर आएगा, ठीक है. ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको जानना जरूरी है. फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करो इसको. आप चाहो तो एग्जिस्टिंग शीट में बना सकते हो, नए शीट में भी बना सकते हो. मैं ऑलवेज प्रेफर करूंगा मेक इट इन अ न्यू शीट, नॉट इन द एग्जिस्टिंग शीट, ठीक है. और फिनिश कर दो. तो अभी देखो यहाँ पर ये आपके फील्ड्स आ गए, जो जो फील्ड्स है तुम्हारे, ठीक है. अब तुमको अगर जैसा डेटा ऑर्गेनाइज करना वो कर लो. मान लो मेरे को स्टेट वाइज जो मैं वो एग्जांपल कर रहा था, तो वैसा अगर कुछ डेटा चाहिए तो मैंने स्टेट ले लिया. मैंने रोज में स्टेट रखा, मेरा स्टेट आ गया. मुझे उनके काउंट चाहिए कि कितने एम्प्लॉय पर स्टेट से है. मैंने उस एम्प्लॉय को, मैंने कोई भी एक फील्ड ले लो एम्प्लॉय रिलेटेड, चाहे फर्स्ट नेम ले लो या एम्प्लॉय आईडी ले लो. एम्प्लॉय आईडी लोगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो प्राइमरी होता है, ठीक है. डुप्लीकेट होने के चांसेस नहीं होते उसमें. तो मैं एम्प्लॉय आईडी ले लिया. अच्छा, जब आप डेटा कर रहे हो ना ये सब चीजों की भी ध्यान रखनी होती है. तो मैंने एम्प्लॉय आईडी ले लिया काउंट में. अब यहाँ देखो ये जो वैल्यूज है, अच्छा काउंट वैल्यूज में हमेशा नंबर्स वाले आइटम आएंगे, यहाँ पर हमेशा स्टेटमेंट वाले आइटम आएंगे. तो मेरे को नंबर चाहिए था बोल के मैंने वैल्यूज में डाले. और मैं इनका अगर कुछ वैल्यूज को चेंज भी कर सकता हूँ, वो अपने बाद में देखेंगे. तो इससे देखो मेरे को ये तो मिल गया, ऐसे एक छोटा सा डेटा मैंने अरेंज कर दिया. सिमिलरली अभी मुझे अगर क्या बोलते हैं, अब मान लो मुझे स्लाइसर यहाँ जो मैंने दिखाया था वो यूज करना हो, तो मैं यहाँ जाके इंसर्ट स्लाइसर ले लिया. किस फील्ड पे यूज करना, मान लो मुझे एक्सपीरियंस के नाम पे यूज करना है, ठीक है. मैंने इसको यहाँ डाल दिया एक तो मुझे मगर ये जानना है कि पर स्टेट से एक्सपीरियंस वाइज मुझे कुछ डेटा बाइसेक्ट डाइसेक्ट करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ. 7 साल एक्सपीरियंस वाले कहाँ कहाँ से आ रहे हैं मुझे ये बताओ. तो मैंने चुपचाप यहाँ क्लिक किया, मुझे दिख गया कि ठीक है, आउट ऑफ इट ऑल लिस्ट ऑफ जितना भी था 25-30 स्टेट्स, उसमें से मेरे टोटल 26 स्टेट में, लेट्स से टोटल 23 स्टेट में से 49 पीपल हैं जो 7 इयर्स एक्सपीरियंस है उनके, और ये इतने इतने पॉपुलेशन है, ठीक है. तो आप इसको और भी तरीके से इसको बाइसेक्ट डाइसेक्ट करके देख सकते हो. फिलहाल अभी के लिए यही शॉर्टकट है पिवट टेबल बनाने का. इसको फर्दर और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. ओके, आई कांट सी द just scroll up the chat, so there are some more questions from our learners. Okay, coming. 1 second. Okay, I hope I have answered your question, Sound. Thanks for the question. Gajendra Singh, BVA will be there. Okay, first of all, there is no BVA. कोई बात नहीं. दिस इज कॉल्ड VBA, मतलब आप विजुअल बेसिक के बारे में बात कर रहे हो, जहां पर आप मैक्रोज के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ रहेगा, हम लोग VBA, लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ, VBA कोडिंग, हार्डकोर कोडिंग पे हम लोग नहीं टाइम स्पेंड करेंगे. हम लोग मैक्रो रिकॉर्डिंग एंड कोडिंग पे टाइम स्पेंड करेंगे. मतलब VBA का जो रिकॉर्डिंग पोर्शन है हम लोग उस पर ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ना कि हार्डकोर कोडिंग मटेरियल पे, ठीक है. सो वी हैव VBA, इट्स नॉट BBA, इट्स VBA. वो है हमारे कंटेंट पे, एंड दैट टू ऑन अ रिकॉर्डिंग बेस्ड मैक्रो वी विल डू. वो भी काफी इफेक्टिव होता है, ठीक है. क्योंकि आपको नॉर्मल लाइफ में रिकॉर्डिंग मैक्रो ज्यादा लगती है. अगर आपको कोडिंग की आइडिया है तो आप उसके अंदर जाके आप कोडिंग ट्वीक कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट रादर देन राइटिंग कोडिंग फ्रॉम द स्क्रैच. हाउ लॉन्ग इज द कोर्स? देखो ओवरऑल 30 आवर्स का ड्यूरेशन का कोर्स है, ठीक है. बट दैट इज ऑन पेपर्स एंड डेफिनेटली विल स्टिक टू दैट. बट अगर मान लो ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट we will cut down the thing. The intent over is here to make sure your concepts are getting cleared and you're learning from this session, okay. So definitely 30 hours is and the division is last few hours will be on your
एक्सेल एंड वर्ड एंड पावर पॉइंट, सो दैट आप एक्सेल के सारे कंटेंट को वर्ड और पावर पॉइंट को कैसे एडवांस वर्जन में यूज करके दिखा सकते हो, उस पर फोकस रहेगा। तो वो कुछ घंटे उस पर भी दिए जाएंगे। So overall it's 30 hours, but definitely if something is getting spill over, we'll take care of it. Don't worry about it. Protini team is there to help you out on that. I'll let Protini to take that question. Okay, next, what is there? Thanks workers for the appreciation. I hope you joined the session. Okay, anything else? Certificate, okay, that's fine. That is any more questions for me now? If we know the formulas and basic, so we can mention in our CV that absolutely, इसलिए तो आप सीख रहे हो। आज के डेट में पैसा मैटर करता है। मैं वही बोल रहा हूँ, सीखो वो चीज या फिर जो दिल को शांति दे या जो तुम्हारे बटुए को शांति दे। सिंपल, ठीक है? नहीं तो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं, तुम्हारा मेरा दोनों का कोई सेंस नहीं बनता। आप आओ, आप वही स्पेंड करो जहां आपको लगे कि आप कोई अच्छा गेन कर रहे हो, आइदर फॉर योर यू नो both emotional piece or for your intelligence piece. So definitely Excel will add value to anybody's CV. And I'll tell you, I have started earning my bread and butter through Excel only. I'm not faking. I'm still earning my bread and butter on that only. ठीक है? तो definitely आप add कर सकते हो। एंड आपको बेसिक और एडवांस नहीं दिखना होगा। आप अपने सीवी पे जैसे ही एडवांस एक्सेल डाल दोगे, वो ऑटोमेटिकली आपका वेटेज ऐड करेगा। इंटरव्यू में जाओगे तो आपको इंटरव्यू कैसा फेस करना है, अगर आप ऑलरेडी, मुझे नहीं पता आपके बारे में आस्था जी, तो अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हो तो ठीक है, आपको ज्यादा ग्रूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अगर इन केस आप प्रोफेशनल नहीं हो एंड यू आर जस्ट पिचिंग अप और यू आर गेटिंग सीजन टू बिकम प्रोफेशनल, वी विल ग्रूम यू फॉर द MIS इंटरव्यू। की इंटरव्यूज में कैसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको कैसे फेस करना है आपको, और कैसे हो, क्योंकि आजकल इंटरव्यूज में सर्टिफिकेट ज्यादा, लाइव डेमो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल ऐड वैल्यू टू योर थिंग। Thank you, Asta, for putting up this question. What is the rationale for writing of formulas at the top of the column, not at the bottom, sir? नहीं, तो आई थिंक आप ये हाय इब्राहिम, टू क्लैरिफाई, आई थिंक आपने वो लेंथ वाले फॉर्मूला को देखा है। गुड क्वेश्चन। ऐसा कोई रैशनल टॉप और बॉटम, जस्ट बिकॉज मुझे वो एक पर्टिकुलर सेल चेक करना था, इसलिए मैंने उस सेल को ऊपर जाके रेफरेंस करके आंसर निकाल लिया। बट मतलब मुझे उस एक छोटी सी चीज की मुझे पूरी शीट में जरूरत नहीं थी, तो मैंने उसको एक जस्ट क्विक फिक्स करके निकाला है। ऐसा कोई रैशनल नहीं है कि आप टॉप या बॉटम करना, बट जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी फॉर्मूला लगाए वो हमेशा स्टार्टिंग सेल से लगाए। मैंने ऐसे स्टार्टिंग सेल, मान लो अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने मान लो ये वाली शीट में मैंने डुप्लीकेट लगाया, मैंने बीच से नहीं लगाया क्योंकि मुझे ये पूरे में चेक करना है, राइट। और मानो अगर कोई एरर भी हुआ था, जो मैंने यहाँ दिखाया था आपको VLOOKUP के टाइम पे ट्रिम में, मैंने यहाँ जाके ट्रिम लगा के नहीं फिक्स किया। मैं चाहता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता तो मैं ये कर सकता था। मैं चाहता यहाँ पर, मैं जाता यहाँ पर सिंपल से एक काम करता, इसको व्हाट आई वुड हैव डन मैं बताता हूँ, मैंने शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, मैं जाता इसको ट्रिम कर लेता यहाँ पर, और फिर Ctrl+C Alt+V, मतलब वैल्यूज पेस्ट करना होता है। इसके भी बहुत पेस्ट स्पेशल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वी कैन लर्न इन डिटेल लेटर ऑन। ये करता हूँ, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन अब मान लो अचानक से अगर ये इसका फॉर्मेट चेंज हो गया कहीं से, तो तब मैं क्या करूंगा? इसीलिए हम लोग हमेशा फॉर्मूला स्टार्टिंग से लगाते हैं, बट टॉप या बॉटम अगर आप लेंथ वाले को लेकर रेफर करें तो वो जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया था। बट इफ यू आर अप्लाइंग द फॉर्मूला, वी शुड ऑलवेज स्टार्ट डू फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम वेयर वी नीड टू स्टार्ट द फॉर्मूला। यार हमारा डेटा रेंज आज स्टार्ट हो रहा है। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन इब्राहिम, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। Ashish Sharma, okay, hi Ashish, I'm quite confused in using the type of chart to show my data and something is unsuitable. नहीं, क्या बोल रही है फिर से क्वेश्चन आपका? ठीक है, लेट मी रीड द क्वेश्चन। Guys, 1 second. Okay. Dear learners, we want all this to Hello. lead the Hi. session. Hi. Sorry, actually, I got some tech issue. So I'll just, I think this is the last question we can take right now, I believe, because of the time run. So, fine. So Ashish, to answer your question is, I'm quite confused in using type of chart to show my data, and sometimes it is unsuitable according to data. Absolutely right, Ashish. Yeah, because as I mentioned, हर चार्ट सबके लिए यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाई चार्ट यूज कर रहे हो, तो पाई चार्ट आप
पर्टिकुलर एक सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन के लिए यूज कर सकते हो। अगर मान लो आपको इंडिया का ग्रेड वाइज रॉ मटेरियल दिखाना होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन से मुझे किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल आ रहा है, तो वहां पाई चार्ट यूज करोगे तो वो हेल्पफुल होगा, या डोनट यूज कर सकते हो। बट अगर आप मल्टीपल क्या बोलते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट करके अपना वो दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बार या कॉलमनर चार्ट इज ऑलवेज सेफर साइड, ठीक है। और सिमिलरली आपका एक और आता है चार्ट को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट वी कॉल इट स्टैकअप चार्ट। मतलब जो बार और कॉलमनर का एडवांस वर्जन है, मतलब उससे क्या होता है कि वो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होता है। स्टैक चार्ट अगर आप कभी नोटिस करोगे तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ जस्ट फॉर द एग्जांपल पर्पस। माने वो ऐसे यहाँ पर आपको ना 3 रंग के वो इस तरीके से दिख जाएंगे, एक सेकंड। एंड स्टैक चार्ट कुछ हमेशा ऐसा दिखता है। आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर द रेफरेंस पर्पस, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर नंबर्स दिखे, तो मतलब क्या होता है, आपका चार्ट बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन उस स्टैक चार्ट बनाने के लिए ना आपका डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो टू आंसर टू योर क्वेश्चन आशीष, you will be able to only see your you know the chart which you're looking for once your data is organized like that. अगर आपका डेटा सही से ऑर्गेनाइज इन द सेंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तरीका होता है, राइट। माने आपकी हेडिंग्स हॉरिजॉन्टल में भी हो सकती है, आपकी हेडिंग्स वर्टिकल में भी हो सकती है। तो जिस तरीके से आपका हेडिंग और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वैल्यूज रहेगा, उसी हिसाब के चार्ट्स होते हैं, उस हिसाब से ही चार्ट आपका यूज होगा। और सेकेंडली हर चार्ट का अपना स्पेशलिटी, जैसे मैंने बताया स्टैक चार्ट अपने तरीके से यूज होता है, डोनट अपना एक पर्टिकुलर परसेंटेज पॉपुलेशन दिखाने के लिए यूज होता है। नंबर्स कभी भी नहीं दिखाता है डोनट या पाई चार्ट। तो अगर आपको नंबर्स दिखाने हैं, यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर द कॉलमनर बार स्टैक चार्ट, ठीक है। तो वो सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। थैंक्स आशीष फॉर पुटिंग दिस अप। और कुछ है क्या भाई लोग? But I'm really happy, guys, that you came on Sunday and spending some time and being so interactive. Thank you for this, and hope to look you forward how to make two-way formula, like how to convert either INR to USD and vice versa. Okay, yes, you can use. I cannot show you the demo right now, but I'll tell you you can use this by using the format cell, using the number option. उधर आप जाके अपने करेंसीज में सिलेक्ट कर सकते हो और उसको आप INR और USD में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। Okay, and sorry Savan, because of the lack of time of this webinar, I'm just rushing on this, but you will definitely get all your answers cleared, not in a rush way, once you are into the research session, because we'll book our slots accordingly, right? So please bear with me. Okay, what is the timing of the course session? I'll let Farhan to answer this. Thanks Shweta for the appreciation. How to add extra column? Very simple. You can select this one. Okay, you can select this and right click. You can say insert and you can add columns, or you can put your cursor over on this and put Control Shift plus, ठीक है, वो add हो जाएगा। Control Shift minus से delete हो जाएगा, ठीक है। और अगर रोज में करना है तो रोज को सेलेक्ट करके Control Shift plus करो, रोज add हो जाएगा, Control Shift minus करो, रोज delete हो जाएगा। या ऐसे सेलेक्ट करके आप insert और delete भी कर सकते हो। Details you can look later on, ठीक है। Thanks Atul for putting this up. Okay, anything else? Thank you, Abraham. Okay, anyone else? Thanks, Ashish. Okay, how to remove error? Who's this? Look, hi Jay. Hi Jay. So see, there are 2 ways of removing errors. अगर वो genuine error है, ठीक है, तब तो ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप राइट क्लिक करके, सॉरी राइट क्लिक नहीं करना, ये देखो येलो कलर का बटन आ रहा है, इसको जाके ना इग्नोर एरर कर दो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा ये तब करना जब तुम कॉन्फिडेंट हो कि ये जेन्युइन एरर है, मतलब ये नाम का आ रहा है, तो कभी कभी आता है, हमारा वैल्यू आने के बाद भी आंसर देता है। अदरवाइज अगर NA कहीं आ रहा है तो फर्स्ट डू सम R&D व्हाई यू आर गेटिंग NA, ठीक है। जस्ट डू नॉट इग्नोर एरर। मतलब इग्नोर एरर मतलब आप ये सामने को प्रेजेंट करो कि आपको बॉस अंदर नहीं देख रहा है, वो आपका रिपोर्ट देख रहा है, तो उसको लगेगा कोई इशू नहीं, बट हो सकता है पीछे में कोई बहुत बड़ा इशू हो। सो टू रिमूव एरर, कभी कभी नंबर्स में एरर आता है, जैसे ये एरर आ रहा है और मेरे को रिमूव करना हो और मुझे ये पता है जेन्युइन एरर है, ठीक है। मान लो वहाँ E09 कभी था ही नहीं, तो मैं यहाँ जाऊंगा इग्नोर एरर कर दूंगा, एंड आई विल पुट माय कमेंट्स हियर। हमेशा याद रखना अपने डेटा को कमेंट के साथ जरूर सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन जय। नेक्स्ट थैंक्स श्रेया, थैंक यू सावन, thank you Ranjit, you will learn many more things.
here, and I believe I'll also learn many things from you guys. As I said, it's an open session here. Okay, great. Thank you guys for the active participation. I think I really had a good time with you guys as well, and looking forward to see you in your detailed session. Thanks all. Thanks all. I'm done from my side. Over to you, Farhan. Yeah, thank you, sir. Thanks for joining in and sharing your thoughts today. And to all the students, the session would be to all the learners, rather the working or students or grads. The session would start from this couple of days from now. All the details will be shared across. And every Friday, Saturday, and Sunday for the next 1 month, you would be having the session from 7 p.m. to 9 p.m. live classes. And daily after live, you would be having the recorded on our website, where you would have a login ID password where you can watch the videos in case you miss any of the sessions any day, or even after you have completed the live cohort of 30 days. So it stays back with you for a time period so that you can keep on practicing. And also the tremendous experience that our expert has working with top 4 consulting firms across the world. He would surely share across the insights and would help you ace in your career. So मैं हिंदी में दोहरा देता हूँ आपके लिए कि ये जो कोर्स है वो 30 दिनों के लिए होने वाली है, और हर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का लाइव क्लास चलेगा कोहॉर्ट। और उसके बाद हर दिन लाइव क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी हमारे वेबसाइट पे, जहां पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलती है, सो दैट आप वीडियो को अगर किसी कारण से आप अगर क्लास मिस करते हैं तो आप देख भी सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास करते हैं उसके बाद भी आप रिपीट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपके पास लाइव 1 महीने की कोर्स खत्म होने के बाद भी रहती है एक स्टिपुलेटेड टाइम तक, सो दैट आप तब तक अपने करियर को और ज्यादा आगे तक ले जाएं। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चैट बॉक्स में शेयर हो चुकी है। इसका प्राइस जो है 2000 है, बट अभी फर्स्ट 15 को सिर्फ 1000 रुपीज इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी में मिल रहा है, जो कि अक्रॉस द मार्केट अनमैच्ड प्राइस है। इस प्राइस में आपको कोई नहीं दे सकता प्रो ट्रेनिंग के अलावा। ये सिर्फ इनॉग्रेल ऑफर है, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, रजिस्टर करिए, डिटेल्स लिंक पे है। आपके पास फोन नंबर भी स्टेटस अभी यहाँ पे शेयर हो जाएगा सेल्स टीम का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, बट डाउट हार्डली होना चाहिए क्योंकि सारे चीजों का क्लैरिफिकेशन सर ने दे भी दिया है। और साथ में आपको जो भी वेबसाइट का लिंक है वहां पे आप अगर जाएंगे तो सारा डिटेल्स विद डिटेल्ड ब्रोशर भी है। तो आप ब्रोशर को देखिए, टाइम आप समझ चुके हैं, सिर्फ फ्राइडे रहेगा, सैटरडे रहेगा और संडे रहेगा। सो दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू लुक अप, एंड इट विल सर्टेनली हेल्प यू विद द सर्टिफाइंग body that we would be certifying you. And we already have trained more than 10,000 working professionals as students across various of our programs on our platform. And just on the last note, ProTrainee is a IIM Ahmedabad incubated and IIM Bangalore pre-incubated edtech startup. So we have a lot of recognition that goes and plays with us. So yeah, look forward to see you, and thank you all for joining with us. Still, if you have any questions related to the operation side or anything related to sales side, you can ask us right now also, or you can just hop on to our website, and there is a phone number, or the link, there is a phone number. You can just dial anytime and we would be there to help you out from our sales side. Thank you, everyone. Thanks for joining us. Good day. Thank you, sir. Thanks for joining. Have a great weekend, sir. Learners, I hope you have filled the form for certificate generation, and I would request you all that after getting certificate, kindly post it on your LinkedIn and tag us by the name Pro Training. Thank you all for joining today's session. Thank you, sir, for sharing your valuable time as well as knowledge with the students as well. So now we would like to wrap up the session today. Thank you all for joining once again.